Welcome to my channel Maths by Meenakshi. Today I am teaching you in this video exercise 4.3 of chapter 4, that is linear equations in two variables, NCERT Maths. So first question is, draw the graph of each of the following linear equations in two variables. In 4.2 we have find solution of these linear equations. Now in this exercise we will draw the graph of each question. So there are four parts of first question. Two parts I am doing for you and you will do yourself. First and third part I am doing for you. So see the graph of first part. First part, x plus y is equal to 4. When we are drawing the graph of this linear equation, we have to find firstly solution of this equation. So how we will find the solution? Put value of x, you will get the value of y. If we are putting the value of y, we will get the value of x. So you can put any value. So to make it easy, we put x is equal to 0. That is, if x is equal to 0, then 0 plus y is equal to 4, means y equal to 4. Now coordinates are 0, 4. And if y is equal to 0, you can take value of x. Again you can take value of x. So y, I am taking here y is equal to 0 to make easy. Okay, so in each question you can take x is equal to 0, y equal to 0. You can find the easy solution by doing this. Now y is equal to 0, x plus 0 is equal to 4, x is equal to 4. Now coordinates are 4, 0. Now this can be written as 4, 0, not 0, 4, because x coordinate written firstly and secondly we will write y coordinate. Now you make here table. How? This table contains the value of x and y. X, y. Now if x is 0, then y is 4. If y is 0, then x is 4. Now this is the table of this linear equation. Now we will draw the graph of this equation, and graph of this equation is this. Coordinates are 0, 4 and 4, 0. When x is 0, x 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे. x 0, y 4 एंड y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे. तो ये पॉइंट हो गया 4, 0. दोनों को जब मैच करेंगे तो दोनों ये कोऑर्डिनेट प्लेन है जो x और y दोनों एक्सिस को जब हम मैच करेंगे तो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर फर्स्ट पार्ट. सो ये जो y डैश और x डैश है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आगे तक इसके पॉइंट्स शो करने हैं. तो आप टेबल से आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक लेनी है और लोएस्ट कहाँ तक लेनी है. नेगेटिव वैल्यू हमारे टेबल में नहीं आई, तो इसलिए हमने नेगेटिव को यहीं तक शो कर दिया. ये रॉन्ग नहीं होगा. आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को कम्प्लीटली शो करोगे. जैसे 4 मैक्सिमम था तो हमने एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा ले लिया, इधर भी 4 मैक्सिमम था, हमने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया. बट नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे तो हमने नेगेटिव पॉइंट्स में ज़्यादा इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. दिस स्ट्रेट लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दैट इज़ x plus y is equal to 4. Now third part is y is equal to 3x. Second and fourth part you will do yourself. Now we are finding the value of x and y. So if x is 0, then y is equal to 3 into 0, that is 0. y भी क्या आ गया हमारे पास? 0. कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0. अब आपको पता है कि ये 0, 0 किसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं? ओरिजिन के. तो अब आप x को 0 ले रहे हो, y 0 आ गया. सिमिलरली अगर y को 0 लोगे तो x भी 0 ही आएगा. तो आपने ये ओरिजिन का पॉइंट आया है. इट मीन्स हमें 2 कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने पड़ेंगे. ये जो ग्राफ है इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास होके जाएगी. तो हमें इसके लिए 2 पॉइंट्स और फाइंड करने पड़ेंगे. तो अब आप x को 1 पुट कर सकते हो. इफ़ x इज़ 1,
y is equal to 3 into 1, that is y equal to 3. Now coordinates are 1 3. अब मैंने x को 1 लिया, x को -1 भी ले सकते हो या फिर x को 2 ले लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने सॉल्व करना है. अगर हम y की वैल्यूज़ लेते हैं तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की पॉइंट्स में वैल्यूज़ आएंगी. तो मैं इसको ईजी बनाने के लिए आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, जो 3 के मल्टीपल्स बनते जाएंगे. सो इफ़ x इज़ इक्वल टू -1, आई एम टेकिंग हेयर -1, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी. थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसीजर, अदरवाइज़ गलत कुछ नहीं होगा, वो आप ले सकते हो. y इज़ इक्वल टू 3 इंटू -1, दैट इज़ y इक्वल टू -3. तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास -1 एंड -3. तो इसका जो टेबल है, जब हमारे पास x और y 0 0 आ जाते हैं तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स और फाइंड करने होंगे. तो हम, क्योंकि ये तो रीज़न ही आ गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया सारे प्लेन्स के लिए, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के लिए. तो ये टेबल आपका है x y, व्हेन x 0 y 0, व्हेन x 1 y 3, व्हेन x -1 y -3. सो ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, yes, graph is, coordinates are फर्स्टली 0 0, दैट इज़ ओरिजन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी, वो ओरिजन से पास होके जाएगी. तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हैं x1 y3, दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव, एंड x -1 y -3, बोथ आर नेगेटिव, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो ओरिजिन से पास भी हो रही है. और ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y इज़ इक्वल टू 3x. नाउ दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. नाउ सेकेंड एंड फोर्थ यू विल डू योरसेल्फ. Now second question is, give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? अब आपको एक पॉइंट दे दिया 214. तो 214 का मतलब क्या है, x क्या है यहाँ पे 2 और y क्या है 14. अब एक पॉइंट है, कितनी लाइंस हम लिख सकते हैं इन पॉइंट से. देखो हम कैसे लिख सकते हैं. अगर हम x को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x, तो इज़ इक्वल टू y आ जाएगा, बिकॉज x इज़ इक्वल टू 2, 7 2 द 14 एंड y भी 14 है. तो y को अब इधर ले आओ, ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का. तो 7x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0. ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में. देखो ये जो पॉइंट हैं जो हम ये इक्वेशन बनाएंगे इसको सेटिस्फाई करने चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी. अब आप इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए. अब 7 2 द 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. इट मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशन आई है हमारी, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. अब ऐसे आप और भी बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. अब हम लिख लेते हैं x माइनस वाई, मीन्स x माइनस वाई. अब x माइनस वाई क्या होगा, 2 माइनस 14, दैट इज़ इक्वल टू -12. अब ये -12 है, इधर आके क्या हो जाएगा +12 इज़ इक्वल टू 0. देखो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई. अब इसमें पॉइंट्स पुट करके देखो, x2 -14, 2 माइनस 14 -12 + 12 इज़ इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई. तो ऐसे फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. ऐसे ही आप और लिख सकते हो, x प्लस वाई, दोनों को प्लस कर दो अब, इक्वल टू 16. x प्लस वाई क्या होगा, 2 + 14 16. तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई. अब 2 और 14 पुट करेंगे तो 2 + 14 इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा. तो एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16. सो ऐसे 2-3 मैंने लिख दिए हैं. आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, डिवाइड में भी लिख सकते हो. अब जो y है वो 7x, ये हमने लिख दिया यहाँ पे. ऐसे ही हम कितनी भी इक्वेशंस लिख सकते हैं. सपोज़ मैं लिख देती हूँ 2x प्लस वाई. अब 2x मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और y क्या है हमारे पास
14 है, तो कितना बनेगा अब हमारे पास 2x + y, 4 + 14 = 18। तो अब ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 2 2 = 4 + 14 18, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। ऐसे ही 2x - y लिख सकते हो, x + 2y, x + 3y, तो यहाँ पे जो नंबर है चेंज होता जाएगा। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख देंगे 2x + y - 18 = 0। इसको भी आप ऐसे राइट साइड पे 0 बना लो, x + y - 16 = 0। तो मैंने आपके लिए देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 मैंने बना दिए हैं। ऐसे इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स आर देयर। हाउ मैनी मोर लाइन्स आर देयर? इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर ऑफ वन पॉइंट। एंड वाई? बिकॉज थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास। सो रीज़न कैसे लिखेंगे अब हम इसका? हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर? Infinite lines are there. And why means because through one point infinite lines can pass. एक पॉइंट से कितनी ही लाइंस पास हो सकती हैं, तो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है। यहाँ पॉइंट कुछ भी दे देंगे तो आपने इस वे में इस लाइंस को लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने 4.2 में भी किया था। दैट वाज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। नाउ सेम एज इट इज़ दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व। Here x = 3 and y = 4. Put the value of x and y in this equation. You can get the value of a. Now 3y = ax + 7. X put x = 3 and y = 4. Because this point lies on this equation. अगर ये इस पे लाई करता है तो ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो 3 × 4 because y = 4. A × 3 because x = 3 + 7. 3 4s = 12. A × 3 that is 3a + 7. जो +7 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। Now 5 = 3a. Now 3a = 5. It means a = 5/3. That is the value of a, 5/3. Now third question is completed. Fourth question is, this question is most important question, so understand carefully. Fourth question is the taxi fare in a city as follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो इसमें हमने पहले इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। जब लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं तो उसमें हम वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स और वाई की फाइंड आउट करते हैं। फिर वो जो टेबल होता है उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन पहले से ही होती तो हम सीधा पॉइंट्स निकालते और ग्राफ ड्रॉ कर देते, बट अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो हमने इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। तो जो वेरिएबल है एक्स, वो किसके लिए लेना है हमने? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लेना है? एक्स किलोमीटर। एंड फेयर मीन्स टोटल जो रेंट किराया होगा वो क्या है हमारे पास? वाई रुपीज़ है। तो जो वेरिएबल इन्होंने बोले हैं वही हमें लेने होंगे सोल्यूशन में भी। सो इस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, the solution of this question is, now total distance covered x kilometer, that is given you in statement
कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो कितना हुआ है, x किलोमीटर। एंड फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज़ ₹8। अब टोटल डिस्टेंस x है, जिसमें से 1 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसका ₹8 वो दे चुके हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस इज x minus 1 किलोमीटर, because 1 kilometer is travel with ₹8 and total distance was x kilometer. Now remaining distance is x minus 1 किलोमीटर। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसकी कॉस्ट अलग से है पर किलोमीटर की। फेयर फॉर रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, देखो कितना दिया हुआ है हमें, ₹5 पर किलोमीटर। तो डिस्टेंस x माइनस 1 है, ठीक है, पर किलोमीटर का ₹5 हो गया। तो ये डिस्टेंस को हमने कॉस्ट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5x माइनस 5, ओके। फेयर फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस दैट इज़ 5x माइनस ₹5। दिस इज़ डिस्टेंस। सपोज हमने 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, जो 10 किलोमीटर में से हमने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया वो ₹8 के साथ, जो 9 बचा 10 माइनस 1, सपोज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 10 ले ली, तो x माइनस 1 दैट इज़ 10 माइनस 1, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा। जो 9 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका पर किलोमीटर का 5 है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 दैट इज़ 45। बट हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल थी वो, मैंने आपको एग्जांपल से करवाया वो, तो आपने x को एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे x को अगर हम 10 लेके चलते हैं तो ईजी हो जाता है। अब हमारे पास जो टोटल फेयर आया है वो क्या आया, देखो टोटल फेयर फर्स्ट किलोमीटर का कितना था, ₹8, और जो रेस्ट डिस्टेंस जो बाकी बच गया उसका कितना था, 5x माइनस 5। और टोटल फेयर के लिए जो वेरिएबल है वो क्या दिया हुआ है हमें, y स्टेटमेंट में। अब ये बन गया 5x 8 माइनस 5 दैट इज़ 3। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, अब हमारे पास 5x, y पॉजिटिव है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर x हमारे पास 0 हो जाता है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 0 मीन्स 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 दैट इज़ वाई इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x 0 है तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली हम y को 0 लिख लेंगे अब यहाँ पे। इफ़ y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 मीन्स 5x माइनस 0 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 दैट इज़ 5x इक्वल टू माइनस 3, x इज़ इक्वल टू माइनस 3/5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6, जो कि पॉइंट्स में आ रहा है जब डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है तो x की ही ले सकते हो। x को अगर हम 1 लेते हैं तो ये भी लेके देख लेते हैं जो आपको ईजी लगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 प्लस 3 दैट इज़ 8 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो आपके पास मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स इस इक्वेशन के लिख के दिए हैं। तो आप कोई भी 2 पॉइंट हैं वो ड्रॉ कर सकते हो, वो एज़ यू विश, जैसे भी आपने ड्रॉ करना है। तो अब इसका ग्राफ देख लो। टेबल ऑफ दिस इक्वेशन इज़, I am writing here only 2 points, that is x, y. If x 0, then y 3. If y 0, then x is minus 0.6. So this is the graph of this equation. Yes. When x is 0, that is on y-axis and y is equal to 3. y की वैल्यू यहाँ पे 3 है और x यहाँ पे क्या होता है, 0। y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आएगा।
-0.6 तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और जो सेंट्रल लाइन होती है वो 0.5 तक होती है, उससे जस्ट एक पॉइंट बाद -0.6 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 10 डिवीजन्स होती हैं तो 5th डिवीज़न के जस्ट बाद ही 0.6 आ जाएगा नेगेटिव साइड। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन से क्वेश्चन की बन जाएगी, टैक्सीफेयर, दैट इज़ 5x - y + 3 = 0। तो इस क्वेश्चन के साथ इस सोल्यूशन के साथ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, स्टेटमेंट चेंज होके भी आ जाती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू।